Hi students, good morning. So let us continue with the topic of magnetic effect of electric current जो हम लोगों ने कल तक जहाँ तक किया था और the previous lecture तक किया था. Now first of all please understand that Oersted ने जब वो experiment किया जिसके अंदर उसे मालूम पड़ा कि as soon as I am going to place a compass near a wire carrying the current और उसको deflection मिल रहा था. So he was getting deflection. Not he was getting deflection, as in the compass was getting deflection. Now यहाँ पर let's talk about certain cases today, and these cases are one of the most important cases. Tomorrow we are going to discuss about the word electric motor, and then comes the word generator, and उसी के साथ में earthing and all this, and topic ends up. So I think 3 more lectures. First topic is magnetic field due to a current through a state conductor. Now what actually happens? Let us say suppose there is this particular conductor in which the current is traveling like this. This is that battery. Now you already know guys, we have already studied this in the chapter current electricity. Electrons will be moving from this direction towards this direction, while जो direction of current जिसको हम बोलते हैं and which is the direction of electrical field, and that is always from positive to negative. Okay. So एक करंट जा रहा है इस पर्टिकुलर वायर के अंदर. नाउ दे आर सेइंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट. जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो दे फाउंड आउट दैट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द करंट. एज सून एज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द करंट, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ इन सिंपल वर्ड्स? सपोज करो ये करंट जा रहा है आपके पास में कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा? दैट इज समथिंग लाइक दिस. इस वाले डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा लाइक दिस. ओके, सो इफ द करंट इज गोइंग इन लाइक दिस डायरेक्शन, say like this direction, then of course I can't make that particular part guys, so in a way it should be something like this. So I am making this, that means ये direction हो जाएगा current का like this. Now of course I will tell you first of all, so let's not go into the word direction right now. Let's understand कि इसका मतलब क्या हुआ. एक वायर है जिसके अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है. ओके, इसके बगल में आपने एक सेफ्टी पिन लगाया, बिल्कुल बगल में ऐसे, कॉमन सेंस है, वो सेफ्टी पिन ऐसे चिपक जाएगा, राइट. अब एक और वायर है, उसके अंदर जा रहा है 10 एम्पियर का करंट, आपने उसके बगल में एक सेफ्टी उसको लगाया, वो भी चिपक जाएगा. बट देन कम्स विच वन इज गोइंग टू गेट स्टेक्ड विद दिस वायर विद अ हायर इंटेंसिटी in which the current is flowing higher. जिसमें भी करंट ज़्यादा जा रहा होगा या ज़्यादा आपका जा रहा होगा, उस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. ओके, नाउ B is also inversely proportional to what? R. Now what do you mean by the word B is inversely proportional to the word R? इसका मतलब हुआ जितना आप वायर से जिसमें करंट जा रहा है, जितना आप उसे दूर 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 जाते जाओगे, उतना आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती जाएगी? कम. सो अंडरस्टैंड, द फार्दर अवे यू आर फ्रॉम अ वायर व्हिच इज कैरिंग करंट, एंड द लेसर आर द चांसेस दैट यू विल बी फीलिंग एनी द मैग्नेटिक अट्रैक्शन. ओके, नाउ इन दोनों की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक रूल आया विच सेड द एम्पियर्स राइट हैंड रूल, और द राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको. So let's not bring ampere into this context. First of all, let's understand what do you mean by the word right hand thumb rule. See, पहले आप एक चीज ध्यान रखना, जिस भी जगह पर करंट होगा उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा. जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर करंट मे और मे नॉट भी हो सकता है. प्लीज रिमेंबर माय स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली. If there is presence of electric current, there has to be a magnetic field associated with that current. Right? Now, how will we do the right hand thumb rule? Now, what does the right hand thumb rule means? It simply means, let us suppose there is this wire, ये रहा wire,
and the current is traveling in this direction, current ऐसे में जा रहा है. So what the right hand rule says, if you are going to hold this particular current or the current carrying wire like this, now that does not means कि आपको hold करना है. In simple words, जिस direction में current है उस direction में आपके right hand का thumb लगा दो like this. जिस डायरेक्शन के अंदर आपके जो फिंगर्स हैं वो ऐसे बंद करने के लिए ऐसे स्वर्ल हो रहे होंगे या कर्व हो रहे होंगे, दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. लेट अस से सपोज वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर करंट व्हिच इज गोइंग लाइक दिस. करंट जा रहा है कुछ यहां से. ओके, नाउ मैंने इधर पे एक प्लैंक लगा दिया या एक बोर्ड लगा दिया. ओके, और एक जो वायर है ये इसको पियर्स करता हुआ जा रहा है. पियर्स मतलब बीच में से एक होल करके एक बुक रख लो, उसके बीच में एक होल कर दो एंड देन वायर आपका ऐसे में जा रहा है. नाउ यदि आपने इस वायर के आजू बाजू यदि आपने आयरन के छोटे 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 कुछ पाउडर या स्प्रिंकल यदि आपने कर दिए और आपने उसको हल्का सा ऐसे टैप किया, झटका दिया, तो क्या होगा? आपको कुछ पैटर्न बनना चालू हो जाएंगे. And what will be these particular kind of patterns? Now since current is going in this direction, ये देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा? ऐसे, like this. So that means that जो आपके मैग्नेटिक रिंग्स जो बनेंगे, जो इसके आजू बाजू बनेंगे, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? From this to this, right? और ये एक रिंग नहीं बनेगा. क्यों? Because the current is going in this direction and you are wrapping it up like this, right? So this will be showing you the direction. आया? On the other hand, suppose कर लो that there is this particular wire in which the current is going where? In downward direction. और मैंने दोबारा से एक suppose एक plank रखा, फिर से मैंने इसके ऊपर में पीसेस करे एंगल. अब की बार द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज वेयर? डाउनवर्ड्स. इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? लाइक दिस. ऐसे ऐसे में बनना चालू हो जाएंगे. सो इट विल बी लाइक दिस. ओके, एंड डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. Did you understand? So that means that with the help of this particular diagram, you can understand that where will the magnetic field lines be made. Suppose ये वायर जा रहा है करंट लेकर के कुछ ऐसे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे. In simple words, if the current is going in this direction, then the magnetic field will be going in this particular part like this. Got it? So this is how you are going to find out that how the magnetic fields are going to get produced. आगे बढ़ते हैं. इसी का एक और सिंपल वर्जन है स्क्रू कॉर्क रूल. आपने कभी भी कोई स्क्रू टाइट या आपने ऐसे थोड़ा सा लूजन अप किया है? ऑफ कोर्स कभी ना कभी किया ही होगा. सो स्क्रू वुड रिक्वायर अ स्क्रू ड्राइवर. अब मान लो मेरे पास में एक स्क्रू है और मुझे उसको टाइट करना है, मुझे उसको नीचे की तरफ में लगाना है, मतलब नीचे उसको भेजना है, कंप्रेस करना है. तो मैं क्या करूंगा? द वे आई एम गोइंग टू स्क्रू इट इज लाइक दिस, एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट. कैसे हुआ? जब आप स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाते हो तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ऐसे में. दैट्स हाउ यू आर मूविंग द स्क्रू लाइक दिस. अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो खुलेगा, मतलब वो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा? सर वो नीचे जाएगा. सो कॉमन सेंस, दिस नीचे जाने वाला पार्ट विल बी नोन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड स्क्रू कॉर्क को आपने जो इस डायरेक्शन में किया लाइक दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. नाउ सपोज करो आपको स्क्रू खोलना है, यू नीड टू ओपन द स्क्रू. सो हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? यू आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस, राइट? आप ऐसे ऐसे में घुमाना चालू करोगे. नाउ दिस विल बी शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. And where will the current be going? Upwards, right? और आप खुद भी देख लो like this. आप ओपन कर रहे हो और देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से भी आप ऐसे में जा रहे हो. फिर से रिपीट करता हूं.
लेट अस अज्यूम राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट कुछ जा रहा है ऐसे में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? रैप इट अप लाइक दिस, दैट मीन्स इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब स्क्रू कॉर्क रूल पे आता है, मान लो स्क्रू आपको टाइट करना है, तो टाइट करोगे तो कहां जाएगा? नीचे, एंड दिस विल बी शोइंग यू व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस वुड बी व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। On the other hand, let us try and put the direction of this current upwards. Current का मतलब क्या? I, upwards. Now जैसे ये I ऊपर की तरफ में जाएगा, wrap it up like this, like this. That means that this is going to move like this. Correct? अब मान लो मैंने screw cork rule बोला, वो भी वही सेम है। Screw cork rule का मतलब क्या हुआ? आपको screw को untight करना है, open करना है। जैसे आप कभी जैम की बॉटल्स को अनलॉक करते हो, केचप की बॉटल्स को अनलॉक करते हो, हाउ डू यू ओपन? लाइक दिस। तो वो कैप कहाँ आता है? ऊपर। और यदि आपको कभी कैप को टाइट करना होता है, सो इट्स दैट सिंपल। करेक्ट? सो व्हेनेवर समबडी will be giving you that this is the current flowing, where will the direction of the magnetic field will be? You will be saying it like this. Got it? Okay. Let's move ahead. Magnetic field due to current in a circular loop. अब हर बार जरूरी तो है नहीं कि वायर हमेशा ऐसे ही जाएगा। मान लो कभी वायर कुछ ऐसे में जा रहा है, लूप्स एंड लूप्स एंड लूप्स एंड लूप्स एंड लूप्स, या वायर कुछ ऐसे में जा रहा है, सपोज कर लो एक लूप है, एंड द करंट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। करेक्ट? अब इस केस के अंदर जब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, they once again found out the same part. B is directly proportional to I. That means magnetic field strength or magnetic field intensity is always going to be directly proportional to what? I, current. जितना ज्यादा current, उतना ज्यादा magnetic field intensity. B is also inversely proportional to what? R. So that means that magnetic field is inversely proportional to R. That means the farther away you are going to move from this wire, and the magnetic field is going to get what? Decreased. Magnetic field कम होना चालू हो जाएगा। बट सर कम क्यों होगा? अरे कॉमन सेंस, आप जितना मैग्नेट के पास में रहोगे उतना मैग्नेट आपको पुल करेगा, स्ट्रेंथ। ओके? B is directly proportional to N. Now what do you mean by this? If I need to increase the magnetic field, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे बहुत पास में आना पड़ेगा, सेकेंड ऑप्शन मुझे करंट इंक्रीज करना पड़ेगा। बट मान लो मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं करना, देन क्या कर सकता हूं? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो। सर अब ये नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब, मान लो ये एक ही वायर है और मुझे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो मैंने इसके चारों तरफ छोटे 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 ऐसे इसके ऊपर में वायर्स बांधना चालू कर दिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी वो जो आर्मी के जो मूवीज बनाते हैं, तो उनमें वो जो फेंसिंग होती है ना, फेंसिंग के ऊपर में ऐसे ऐसे गोल गोल वायर्स लगा देते हैं, लाइक दैट। उसे हम नहीं मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, वो तो प्रोटेक्शन के लिए होता है। बट आई एम जस्ट जनरली टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज टोरॉइड। सो व्हाट डू यू मीन बाय टोरॉइड? Toroid is nothing else but is a circular wire on which huge number of turns of insulated copper wire is going to be wound. आपने बहुत सारे insulated copper wounds बांध दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। Now guys, जब भी कभी सर्कल के अंदर जब भी ये डायरेक्शंस आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे डायरेक्शन को फाइंड करोगे? Whenever there is going to be clockwise direction, clockwise, then it will always be known as south pole. जिस भी जगह पर सर्कुलर लूप के अंदर यदि आपका करंट कुछ ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे डायरेक्शन में घूम रहा है जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है, then this pole will be known as what? South pole. और इसका ऑपोजिट पोल क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल। ऑन द अदर हैंड, यदि आप इस पर्टिकुलर से टोरॉइड में या एक रिंग के अंदर यदि आप करंट को ऐसे में रोटेट कर रहे हो, लाइक दिस, देन दिस पोल विल बिकम व्हाट? नॉर्थ पोल। इट्स दैट सिंपल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर के अंदर, इवन इन इन्फ्लुएंस बुक एंड इवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, you would be able to find a lot of diagrams. Please guys, do see each and every diagram. Do not miss any single diagram.
दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स द वर्ड सोलेनॉइड। और ध्यान रखना, जब भी कभी हम बहुत सारे टर्न्स ऐसे लगाना चालू कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉइल, COIL, कॉइल। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं द वर्ड सोलेनॉइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सोलेनॉइड? सपोज करो यदि मैंने वायर को किसी भी एक पीस के ऊपर में रैप कर दिया इन अ स्ट्रेट, इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्मेट लाइक दिस, straight cylindrical format like this, then this will not be known as toroid, this will be known as solenoid. So what do you mean by solenoid? Solenoid means when a large number of turns of wire and that too insulated copper wire. अब सर insulated copper wire का मतलब क्या होता है? यदि कॉपर के वायर पे एक प्लास्टिक का आपने चढ़ा दिया पूरा का पूरा लेबल, जो आपको मार्केट में जो वायर्स मिलते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स का आपने बहुत ज्यादा टर्न्स लिया तो वो क्या बन जाएगा? एक सोलेनॉइड। यदि स्ट्रेट होगा तो सोलेनॉइड, और यदि सर्कल में होगा तो टोरॉइड। दैट्स सो सिंपल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी आप सोलेनॉइड की बात करोगे, सोलेनॉइड विल ऑलवेज ऑलवेज बिहेव एज अ बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड के अंदर दो टर्न्स होंगे, तो कॉमन सेंस है यदि आपका करंट ऐसे ऐसे में जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दिस विल बिकम व्हाट? साउथ पोल। यदि आप यहां से देखोगे इस पर्टिकुलर कॉइल को, तो ये देखो, ये ऐसे में बाहर आ रहा है तो आपको ऐसे ऐसे में दिखाई देगा, सो दिस विल बिकम व्हाट? नॉर्थ पोल। सो जिस भी जगह पर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटर करता है दैट विल बी नोन एज साउथ पोल, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन विल बिकम व्हाट? नॉर्थ पोल। दैट्स सो सिंपल। करेक्ट? ओके, सो सोलेनॉइड की डेफिनेशन ध्यान रखना है टोरॉइड की। सो व्हाट इज सोलेनॉइड? कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound over a cylindrical tube will be known as solenoid. Now please remember, यदि आपने इस पूरे के पूरे वायर, ये जो वायर वाला पार्ट था ऐसे ऐसे में, यदि आपने इसके बीच में एक आयरन का पीस लगा दिया, then what will you get? You will get a word known as electromagnet. Now what is an electromagnet? Electromagnet is a temporary piece of magnet. As soon as you are going to switch on the current, वो जो आयरन का पीस है वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट, और वो सब चीजों को अट्रैक्ट करेगा। बट एज सून एज यू आर गोइंग टू स्विच ऑफ द सप्लाई, वो क्या बन जाएगा? दोबारा से आयरन पीस। सर लेकिन ये किस काम में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट? बड़े बड़े जगह पर जब आपको स्क्रैप उठाना होता है तो एक तो होता है कि आप क्रेन उठाओगे लेकिन उसे फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। सो अनदर पार्ट कुड बी व्हाट? आपने एक क्रेन से एक जायंट, ओके, या आपने कोई भी एक क्रेन से जो कि मैग्नेटिक होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है एक जगह पर। हाँ, ऑफकोर्स वो पेट्रोल एंड डीजल से नहीं चलेगी। सो यदि आपने उस पर्टिकुलर क्रेन पे एक बड़ा सा आपने एक आयरन का पीस लगा दिया, उसके चारों तरफ में वायर लगा दिया, running over it. As soon as you're going to switch it over, the entire bada piece will become what? A gigantic magnet. And this has got the power to lift up anything. इससे क्या करते हैं? फॉरेन कंट्रीज में इससे स्क्रैप उठा करके यहाँ से वहाँ डंप कर देते हैं। ऑल्सो वो जो कार्स देखी है आपने, जब उनके यहाँ पुरानी हो जाती हैं कार्स, तो वो लोग क्या करते हैं? क्रश कर देते हैं। तो ऐसे ही उन कार को उठाने के लिए दे विल ब्रिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, पिक इट अप एंड थ्रो इट। लेट्स मूव अहेड। Now comes the most important part, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Now suppose करो आपके पास में एक कोई जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही है, ऑलरेडी है। यहां पर एक वायर है जिसमें करंट भी जा रहा है। So there is a wire in which current is there, and this current carrying wire is placed in a uniform magnetic field. अब क्या होगा? Now there is going to be a force which is going to be applied on this conductor. अब जो भी कंडक्टर आपने डाला है उसको एक फोर्स फील होगा, एक धक्का लगेगा। सर नहीं समझ में आया? Let's understand this. Before doing that, let me understand first of all the Fleming's left-hand rule. इसका एक सिंपल सी ट्रिक होती है guys. So you just need to take your left hand like this. Now stretch your thumb in the upward direction. This is your what? The forefinger.
एंड द मिडिल फिंगर, और ये तीनों के तीनों फिंगर्स कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्रीज, एंगल 90 डिग्रीज. नाउ पुट इट लाइक दिस, द थंब विल ऑलवेज represent what? Force, this one magnetic field, and this one current. अब सर इसका मतलब क्या हुआ? ये फिंगर जिस भी डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. This will be showing you the direction of what? Magnetic field. And this will be showing you what? The force. तो इसकी shortcut trick is father, mother, child. Father, mother, child. Father is what? F stands for what? F stands for force. Mother, M. M stands for what? M stands for magnetic field. C, current. Current stands for what? Current. Now suppose करो किसी ने कभी कोई क्वेश्चन दिया that there is this particular current which is going from south to north. ये रहा south, ये रहा north, इस direction में जा रहा है. Okay, so the current is going in the northern direction from south, and the magnetic field is being applied where? From the eastern section to the western section. So west पे क्या बन रहा है? Magnetic field lines. Where will the conductor feel the force? In which direction? Upwards. यही उल्टा होता, downwards, like this. So this is known as Fleming's left hand rule. But ये Fleming's left hand rule की जरूरत क्यों पड़ती है? Whenever you are going to pass a current carrying conductor through a uniform magnetic field, then it will always experience a force. और इसी प्रैक्टिकल फिनोमेना के वजह से दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक मोटर्स बनती हैं वो हमेशा इसी की वजह से बनती हैं. इलेक्ट्रिक मोटर्स, जनरेटर्स एंड ऑल दिस. ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. We will be completing the topic of electric motor tomorrow. So I'm going to explain you each and every term and then we are going to proceed. Fine. Thank you guys so much for being with me. Enjoy. Cheers. Chill. Bye-bye.